لہو اس کے لیے معقباتن نگران ہیں، باری باری ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، من بینی یدیہ ان کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، یحفظونہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی، من امر اللہ اللہ کے حکم سے۔ جی دیکھیں، یہاں انسان کے متعلق کہا گیا ہے کہ انسان کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مامور کر رکھے ہیں، وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں اتنی بات تو ہم نے سنی ہوئی نا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان بھی ہوتا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، لیکن جو ہے فرشتے کتنے ہوتے ہیں آگے اور پیچھے، اور ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں بھی فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں صبح شام کے اذکار جو ہے وہ یاد کرنے پڑیں گے، وہ پڑھا کریں تاکہ جو ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ہماری حفاظت کر سکے۔ اور بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا، اللہ معاف کرے، بڑا بڑا سویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور بندہ بالکل جو ہے وہ بچ جاتا ہے، یعنی اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ فرشتے جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، اور اس وقت تک وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں تبدیل کرتا، نہیں بدلتا، ماں جو نعمت بھی قومن کسی قوم کے پاس ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدل دیں، ماں بانفسہم جو ان کے دلوں میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ خود قوم نہ چاہے اپنی حالت بدلنے کے لیے۔ جیسے کوئی ایک شاعر نے بھی کہا ہوا ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ مولانا ظفر علی خان کا جو ہے وہ شعر ہے، تو بالکل جو ہے وہ یہ اس آیت کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر ہمیں اپنی حالت بدلنے کا خیال ہی نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت نہیں بدلیں گے۔ تو پہلے ہمیں خود جو ہے وہ اپنے اندر سپارک پیدا کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمیں خیال ہو کہ بھئی ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری حالت بدل دیں گے۔ وَإِذَا اور جب اراد سر اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو خیال بھی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ جی بالکل ایسی ہی بات جی، خیال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ چندہ ہے یہ میرے خیال سے، باجی آشی، اچھا باجی جی ایسی ہے۔ سر، ہاں اچھا سر چلیں، میں ہوں۔ اچھا چلیں چندہ، تو بہرحال یہ اچھا چندہ، خیال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو خیال بھی کب آئے گا؟ خیال بھی تب آئے گا نا جب بندہ انسان جو ہے کوشش کرے کہ میں نے نیکی کرنی ہے، تبھی خیال آئے گا نا۔ اگر ایک بندہ جو ہے وہ برائی پر برائی کرتا جا رہا ہے اور اس برائی کو وہ برائی سمجھ ہی نہیں رہا تو پھر خیال بھی نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا۔ وَإِذَا اور جب اراد اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بقوم کسی قوم کے ساتھ سوءم برائی کا، عذاب کا، فلا مردہ پس نہیں کوئی ٹالنے والا، لٹانے والا، لہو اس کو، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا، من وال کوئی ولی، دوست، حامیو، مددگار۔ یعنی اس غلط فہمی میں بندے کو نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں کوئی پیر یا فقیر یا کوئی اگلا پچھلا بزرگ یا کوئی جن یا کوئی فرشتہ، کوئی ایسا زور آور بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہمیں بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے جو ہے وہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر لیں گے تو پھر اللہ کی گرفت سے جو ہے وہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔ والذی وہی ہے جو یوریکم البرقہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً خوف سے یعنی ڈرانے کے لیے، و طمعاً اور امید دلانے کے لیے، و ینشئ اور اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے، السحاب الثقال بوجھل بادل، بھاری بادل۔ یعنی اللہ دیکھیں جب بجلی کڑکتی ہے نا تو خوف اور طمع، یعنی خوف کی جو ہے وہ کیفیت بھی ہوتی ہے اور امید کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے جی؟ خوف اور امید سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ سر خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی ہم پہ ہی نہ گر جائے یا کوئی نقصان نہ ہمیں پہنچ جائے اس سے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ اتنی شدت کی گرمی، اب بجلی بادل گرج رہے ہیں تو بارش آئے گی اور یہ
गर्मी का जोर टूटेगा और मौसम थोड़ा अच्छा नहीं, होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बर्क जो है ना, लफ्ज बर्क, ये जो आसमान में बिजली कड़कती है ना, जो हमें नजर आती है, उसको बर्क बोलते हैं। और जो जमीन पर गिर जाए ना, उसको साइका बोलते हैं, याद रखिएगा। ये अगली आयत में साइका का लफ्ज भी आएगा। तो बर्क जो है वो ऐसी बिजली है जो आसमान पर सिर्फ कड़कती है, जमीन पे नहीं गिरती। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता है वो ऐसी बिजली जिससे जो है वो तुम्हें खौफ भी आता है और उम्मीद भी आती है। और वही है जो है वो भारी बादलों को हवाओं में उठा के लेके जा रहा है। वयुसब्बिहु, और तस्बीह बयान करती है, पाकीज़गी बयान करती है, अर्रादु गरज, बिहम्दिही, उसकी तारीफ के साथ, उसकी हमद के साथ, वल मलाइकातु, और फरिश्ते, मिन खीफातिही, उसके डर से, उसके खौफ से। देखें, बाज का जो है वो लोगों का अकीदा होता है, कुरैश मक्का का भी अकीदा था, मुशरिकीन मक्का का भी अकीदा था कि बारिश जो है वो मखसूस फरिश्ते जो है वो अपनी मर्जी से बरसाते हैं। देवी देवता जो है वो उनकी मर्जी से बारिश जो है वो नाजिल होती है, नजूल होता है उसका। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये जो रात है और मलाइका जो है, ये तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। और क्यों बयान करते हैं? मिन खीफत ही, अल्लाह ताला के खौफ से। तो तुम किस गुमान में हो कि ये जो है वो फरिश्ते या जो है फलां वली या फलां जो है वो करता धरता जिसको हम कहते हैं, उसकी मदद, उसकी वजह से जो है वो बारिश आ रही है? ऐसी बात नहीं है। वयुरसिलु सवाइक, वयुरसिलु, और वो भेजता है, अस्सवा अस्सवाइका, कड़कती बिजलियां। ये सवाइक साइका, ये वो साइका है जो, साइका की जमा है। ये साइका की जमा है। ये जमीन पर जो बिजली गिरती है ना उसको साइका बोलते हैं। वो युरसिलु सवाइक, और वो भेजता है कड़कती बिजलियां, फयुसीबु बिहा, फयुसीबु, बस वो इसे गिरा देता है, बिहा, इसको, मैं यशाउ, जिस पर चाहता है, वहुम, और वो सब, युजादिलूना, झगड़ा करते हैं, फिल्लाही, अल्लाह ताला के बारे में, वहुवा, और वो शदीदुल मिहाल, सख्त कुव्वत वाला है, जबरदस्त कुव्वत वाला है। यानी अल्लाह के मामले में वो झगड़ रहे हैं कि जी अल्लाह तीन में से एक है। ठीक है, जैसे ईसाइयों का अकीदा है, या जो है वो उजैर जो है वो अल्लाह का बेटा है, ये अल्लाह के मामले में झगड़ रहे हैं ना। या जो है वो किसी को नूरुम मिन नूरिल्लाह कह देना, ये अल्लाह के मामले में झगड़ना है ना। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तो इतने ताकतवर हैं कि पीछे उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला ने जो आयात हमें बताई हैं, ये सारी की सारी अल्लाह ताला की निशानियां हैं, अल्लाह ताला की कारनामे हैं। अल्लाह ताला तो इतने शानदार है। वो हुआ शदीदुल मिहाल, और वो बड़ा कुवत वाला है। और ये लोग जो है इस झगड़े में पड़े हुए हैं कि अल्लाह पता नहीं है या नहीं है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। नहीं, कहा था यार। लहू, उसी के लिए है, दावतुल हक, सच्ची पुकार। अच्छा, यहाँ इससे पहले जितनी भी आयात हमने पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी बताई हैं। अब बात मुद्दे की हो रही है, यानी असल बात ये है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी अपनी निशानियां बताने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो पुकारना है ना, पुकारना, वो हक पुकारना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। सिर्फ आप अल्लाह तबारक व तआला को पुकारेंगे तो यही एक सच्ची पुकार होगी, याद रखिएगा। देखें आप, माशाल्लाह कितने दिन हो गए हम जो है वो कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। कहीं जो है वो कोई ऐसी बात आई हो कि भाई अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारो, या अल्लाह के दरमियान किसी और को वसीला डाल लो, कोई ऐसी बात आपने सुनी है? जी, आप लोगों से मुखातिब हूं मैं। नहीं सर, नहीं सुनी। हाँ, ये पूरे कुरान पाक में इंशाल्लाह ये ऐसी कोई बात नहीं है। स्ट्रेट वे जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो इस दुनिया पर मबूस हुए थे, और उनका मकसद भी यही था कि हर शख्स का जो है वो नाता ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ जुड़ जाए। तो सारी बातें करने के बाद, सारी निशानी बताने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लहू दावतुल हक, कि उसी को है पुकारना और यही सच्ची पुकार है। वल्लजीना, और जिन्हें यदऊना, वो सब पुकारते हैं, मिन दूनी ही, उसके सिवा, ला यस्तजीबूना, नहीं वो सब जवाब देते, लहुम, उनको, बिशैइन, किसी चीज का, इल्ला, मगर, कबासिती, उस शख्स की तरह जो फैलाने वाला है, कफ़ई, अपनी हथेलियां, अपने हाथ,
इलल माई पानी की तरफ लियबलुगा ताकि पहुंच जाए, यानी वो पानी पहुंच जाए, फाहु उसके मुंह को, वमा और नहीं हुआ वो बिबालिगी उस तक पहुंचने वाला, वमा और नहीं दुआउल काफिरीना काफिरों की पुकार, काफिरों का पुकारना, इल्ला मगर फी जलाल गुमराही में। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और पानी उसके काफी दूर पड़ा हो और वो जो है वो पानी की तरफ हाथ फैला के पानी को कहे कि भाई आओ मेरे मुंह में जो है वो आ जाओ, पानी जो है वो क्या उसके मुंह में चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल पानी नहीं। पानी नहीं जाएगा उसके मुंह में, क्यों? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं इसी तरह कि जो लोग जो है वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं, वल्लदीना यदऊना जो पुकारते हैं मिन दूनिही उसके सिवा, ला यस्तजीबूना नहीं वो जवाब देते, लहुम बिशैइन उनके लिए किसी भी चीज का। और उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स जो है वो पानी दोनों अपनी हथेली, प्यासा शख्स जो है वो अपनी दोनों हथेली जो है वो पानी की तरफ फैलाए और पानी को कहे कि आओ मेरे मुंह में आ जाओ, वो माँ हुआ बिबालिगी वो हरगिज उसके मुंह में नहीं जा सकता। तो इसी तरह जो है वो अल्लाह के सिवा जब बंदा किसी और को पुकारता है, वो शख्स जो है वो गैर उल्लाह उसकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकता, याद रखिएगा। ठीक है, वो माँ दुआउल काफिरीन और काफिरों का पुकारना, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने काफिर कहा है जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हैं। और काफिर लोगों का पुकारना जो है वो सरीहन गुमराही है, वो गुमराह हो चुके हैं। हमारे यहाँ जो है वो आम शिर्क शिर्क जो है वो तो आम हमारे यहाँ पाकिस्तान में है ना, इंडो पाक में, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, कि जी फलां जो है वो बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, उसके पास जाएं और जो है वो आप जो है उसकी कब्र पर जाएं और उसके वसीले से दुआ मांगे। मुझे आप बताएं क्या कहीं किसी आयत में आज तक अभी हमने ये पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इस तरह की मिसाल दी हो कि भाई फला फला तरीके से वसीला पकड़ो, फला तरीके से वसीला पकड़ो? हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि नेक माल का वसीला लेना चाहिए, नमाज का वसीला लेना चाहिए, सबर का वसीला लेना चाहिए। सबर और नमाज का अल्लाह वो कुरान की एक आयत भी है ना कि और क्या सबर और नमाज से वसीला पकड़ो, इस तरह की कोई आयत है, मेरे ज़हन में नहीं आ रही। तो आप जो है वो सबर के साथ और नमाज के साथ जो है वो वसीला पकड़ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम जब परेशान हुआ करते थे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो नमाज शुरू कर दिया करते थे। तो क्या हम परेशान होते हैं तो क्या हम नमाज शुरू करते हैं? तो ये हमने अपनी जो है वो जिंदगी पर थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालनी है और देखना है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं कुरान पाक, क्या हमारी जिंदगी इसके मुताबिक गुजर रही है कि नहीं गुजर रही। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर सेशन हमारा एंड हो गया।